کہ خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت بخشی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اس کلام کی عزت میں ہم سب کھڑے ہوں گے، اس کلام کی عزت میں سب کھڑے ہوں گے، بہنیں بھائی سب کھڑے ہوں گے، جنہوں نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی بہنیں کھڑی ہوں گی، اور جن بزرگ بہنوں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا وہ بھی کھڑی ہوں گی، کیونکہ یہ کلام نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، اس کلام کا خالق زندہ پاک خدا ہے، اور اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اس کلام کو عظمت بخشی ہے۔ آج کی سنہری آیت جو آپ کے پیچھے لکھی ہوئی ہے، ہم اسی کو مل کر تلاوت کریں گے۔ مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 6 آیت سے۔ کلام لکھا ہے، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو، ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف بیٹھیے۔ پریز دی لارڈ۔ سب سے پہلے میں نہایت شکر گزار ہوں پیارے بھائی خدا کے عظیم خادم پاسٹر اقبال صاحب کا اور بشپ ڈاکٹر مجید ناز عاشق صاحب کا، جن کے کنیکشن سے آج میں یہاں پر آپ کے درمیان انجیل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک بات آپ کو بڑا دلیری کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا کا کلام جہاں نازل ہوتا ہے وہاں حالات بدل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع جہاں چلا گیا اس نے حالات بدل دیے، یہاں تک کہ یسوع جس جنازہ میں چلا گیا وہاں سے غم دور ہو گیا اور خوشیاں آ گئی۔ ہاللیلویا۔ اور کتنوں کا ایمان ہے کہ یسوع سچ بولتا ہے؟ ہاللیلویا۔ اور یسوع نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں، اور اگر یسوع اس وقت جہاں چلا جاتا تھا حالات بدل دیتا تھا، آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، وہی آپ کا یسوع، وعدوں کا سچا یسوع آپ کے درمیان ہے، اور وہ آج آپ کے حالات بدل دے گا، وہ آج آپ کی برکتوں کو بڑھائے گا، آج آپ کی سوچوں کو بڑھائے گا۔ ایک بات کی آزادی ہے آپ کے لیے، اگر کلام کی کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور اندر سے من جوش مارتا ہے کہ تالی بجانی چاہیے تو ضرور بجائیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ہنسنے کے وقت ضرور ہنسیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کلام ہمیں ریفریش کرتا ہے، کلام ہمیں اندر سے خوش کرتا ہے، اور جہاں شادمانی آتی ہے وہاں اظہار ہم ہنس کر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ ایک تالی کے ساتھ، زوردار تالی کے ساتھ ہم آج کے پیغام کو شروع کریں گے۔ زوردار تالی کے ساتھ، زوردار، جس نے ابھی تک تالی نہیں بجائی وہ بھی ذرا بجائے، اور یہ تالی آپ کی طرف سے آپ کے یسوع کے حضور شکر گزاری ہے۔ ابھی تک کچھ بچے تالیاں نہیں بجا رہے، ذرا تالی بجائیے، زوردار تالی یسوع کے جلال کے لیے، پیر بھی بجائیں گی۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بولو خداوند یسوع کی، بولو خداوند یسوع کی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج کا ٹاپک ہے پہلی قیامت۔ جب قیامت کا ذکر یا خیال ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم بڑے غم زدہ ہو جاتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، یہ قیامت لفظ ہی ایسا ہے۔ لیکن آج جو آپ یہاں پر موجود ہیں یا اپنے گھروں میں اس کلام کو سن رہے ہیں، قیامت کا لفظ سن کے وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے۔ میں آج اس بات کی گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ لفظ قیامت
का मतलब है मुर्दों में से जी उठना। कोई ऊंची से निकाल सकता है हालेलुया। आपको पता है हम जब ये ईस्टर मनाते हैं तो ईस्टर का जो जदीद नाम है वो आपको पता क्या है? ईदे क़यामतुल ईदे, मेरे साथ रहिएगा जरा, बोलिएगा, ठंड बनूंगी और नहीं लगने जिंदा लगने। ईदे क़यामतुल, यानी कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की ईद। हालेलुया। तो आज हम जो कलाम मुकद्दस का मज़मून सीख रहे हैं वो है पहली क़यामत। और मुकाशफा की किताब के अंदर इसके बारे में सिखाया गया है कि मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। इसका मतलब है अगर पहली क़यामत है तो फिर दूसरी क़यामत भी है। अगर बाइबल इस बात का बयान देती है कि पहली क़यामत में शरीक होने वाले मुबारक और मुकद्दस है, तो फिर दूसरी क़यामत भी है। आइए इससे पहले कि क़यामत की तरफ चले, ये जो मुबारक कहा गया है इसको अपने पास जरूर नोट फरमा लीजिए। इस मुबारक होने के दो मतलब है। ये लफ्ज मुबारक खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है और इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब ये खुदा के लिए इस्तेमाल होता है इसका मतलब फर्क होता है, और जब ये मुबारक लफ्ज इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तब इसके मतलब बदल जाते हैं। ज़बूर की किताब में लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को बोलेंगे, बोलेंगे, मैंने कहा पहले आप बोलेंगे तो बरकत मिलेगी। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। यहां पर खुदा को मुबारक कहा जा रहा है, खुदा के लिए मुबारक लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तब इसके मतलब है हम और तारीफ। क्या जी मतलब है? हम तो तारीफ। लेकिन जब इंसान के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मुबारक, तब इसके मतलब है बाबरकत, खुशो खुर्रम। क्या मतलब है जी? बाबरकत और खुशो खुर्रम। इसका मतलब है खुदा मुकाशफा 20वें बाब के अंदर फरमा रहा है मुबारक और मुकद्दस है वो शख्स जो पहली क़यामत में शरीक होगा। इसका मतलब है उसे बाबरकत कहा जा रहा है। हालेलुया। उसे बाबरकत कहा जा रहा है। और लफ्ज क्या है? क़यामत। क़यामत के दो लुग़वी मानी है, यानी कि लुगत के मुताबिक, उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब है मुर्दों में से, मुर्दों में से, लेकिन दूसरा मतलब महावरतन है। उनके देते क़यामत आ गई। हम कहते हैं महावरतन कहते हैं, उनके देते की आ गया, फलाने घर ते की आ गई है, क़यामत आ गई है। ये महावरतन जब इस्तेमाल किया जाता है तब क़यामत का मतलब है मुसीबत का आना। लेकिन हम महावरतन इसको इस्तेमाल नहीं करते, हम तो अंजील की बात करते हैं। अंजील मुकद्दस में इसका मतलब है बाबरकत होना, यानी कि मुर्दों में से जिंदा हो जाना, यानी कि जिंदगी मिल जाना, यानी कि खुदा के वादों का हमारी जिंदगी में पूरा होना। और आज मैं और आप मुबारक होंगे अगर इस बाबरकत बात को अपने साथ लेकर जाएंगे, और आइंदा हम क़यामत से कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें क़यामत का असल मतलब और मफ़हूम समझ लग जाएगा। पहली क़यामत जिसका ताल्लुक मुर्दों के जी उठने से है, इसके साथ मैं एक और लफ्ज ऐड करने लगा, ईमानदार मुर्दों के जी उठने का। पहली क़यामत में ईमानदार मुर्दे जी उठेंगे और दूसरी क़यामत में गैर ईमानदार मुर्दे जी उठेंगे। क़यामत चाहे पहली हो या क़यामत दूसरी हो, दोनों में मुर्दों ने जी उठना है। लेकिन पहली क़यामत में ईमानदार मुर्दे जी उठेंगे और दूसरी क़यामत में गैर ईमानदार मुर्दे जी उठेंगे। आइए जरा मुकाशफा 20वां बाब, इसी बाब की 4थी आयत से हम पढ़े, हमें पहली क़यामत का मानी पता चलेगा।
चौथी आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर, गौर से सुनिएगा, उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये बात 1000 बरस पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है, पहली क़यामत यही है कि तख्त लग गए, तख्त पर लोग बैठे ताकि वो अदालत करें, और मैंने वो रूहें भी देखी। ये पहली क़यामत में शरीक होने वाले लोगों का म्यार और लेवल है। मैंने पहले आपको बताया, ईमानदार रूहें सबसे पहले जिंदा होंगी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह की खातिर अपने गले कटवाए। बोले हालेलुया। ये हालेलुया बोलने का मकाम है, क्योंकि आज मुझे और आपको ऐसे ईमान की जरूरत है। अगर जरूरत पड़े, अगर वक्त इजाजत दे, अगर मुसीबत इस कदर बढ़ जाए, तो ईमान हमारी जिंदगियों से कभी ना जाए। एक मुहावरा है, मैं अक्सर बोलता हूं, जान जाए ते जाए पर ईमान ना जाए। और ये वो होंगे जो यीशु की खातिर अपने गले कटवा देंगे, अंजील सुनाने की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देंगे, और उनके लिए ये खुशहाली और बरकत है, मुबारक हाली है कि जब यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, सबसे पहले कब्रें खुलेंगी और वो उड़कर अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। दूसरे नंबर पर ये वो होंगे जो उस हैवान की छाप ना अपने माथे पर लेंगे और ना अपने हाथ पर लेंगे, मुश्किलात में से गुजरेंगे। उनकी जिंदगियां कलाम की वजह से बड़ी मुश्किल हालत में रहेंगी, लेकिन मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, यही पहली क़यामत है। अगर मैं और आप इस हालत में आ जाते हैं, अगर मैं और आप इस कंडीशन में आ जाते हैं कि यीशु आसमान से अपनी दुल्हन को लेने के लिए, उसकी दुल्हन कौन है? हरी क्या है? क्यों भाइयों? तुसी भी दी कलीसिया हो, तेरा मतलब तुसी ओदी दुल्हन थे। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु दी नजर च ना कोई मर्द है तो ना कोई औरत है। उसके हुक्म को जो बजा लाता है वो उसकी कलीसिया में शामिल हो जाता है। हालेलुया। जो उसके कलाम को मानता है वो उसकी कलीसिया में शामिल हो जाता है। और उसके आने से पहले अगर हम अंजील की वजह से, अगर हम खुदा के कलाम की वजह से, अगर हम यीशु का नाम लेने की वजह से हम कत्ल कर दिए जाते हैं, हम मार दिए जाते हैं, हम इस सफा हस्ती से मिटा दिए जाते हैं, तो आपके लिए ये खुशी की खबर है कि आसमान से जब यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो सबसे पहले जो इस हालत में मुर्दा दफनाए गए होंगे उनकी कब्रें खुलेगी और वो हवा में उड़कर अपने यीशु का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में खुशी की खबर ले लीजिएगा। और दूसरे नंबर पर वो हवा में उड़ेंगे जो जिंदा होंगे और यीशु आ जाएगा। हालेलुया। आप और मैं काश इस पहली क़यामत में शरीक हो जाए, इस पहली मौत का शिकार हो जाए, दूसरी का इंतजार ना करे, लंबी उम्र ना मांगे कि जी जितनी लंबी उम्र यहां पर होगी शायद मैं बच जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, अगर हम जमीन पर रहते और ईमानदार होने की जिंदगी गुजारते हैं तो यकीन जानिए ये मेरे और आपके लिए खुशहाली है कि हम यीशु मसीह की पहली क़यामत में शरीक हो जाए।
पहली क़यामत में शरीक होने वालों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आइए जरा देख ले। चंद चीजें हैं। सबसे पहले वो मसीह के काहिन और उसके बादशाही के अंदर शरीक हो जाएंगे। इत्थे तुसी भाव मन्ना जे, इत्थे भैन खरचाया दे, इत्थे कुछ पढ़ना नहीं आता, इत्थे कुछ लिखना नहीं आता, लेकिन अगर हम पहली क़यामत में शरीक हो जाते हैं तो आसमान पर हम यीशु के काहिन ठहरेंगे। हालेलुया। हम आसमान पर यीशु के काहिन ठहरेंगे। पहली क़यामत में शरीक होंगे तो आसमान पर मेरे और आपके लिए तख्त लगेगा। दूसरे नंबर पर हम 1000 साला बादशाही में शरीक होंगे। मैंने आपको बताया पहली और दूसरी क़यामत के बारे में। पहली क़यामत किनके लिए है? ईमानदारों के लिए। दूसरी क़यामत किनके लिए है? गैर ईमानदारों के लिए। और इन दोनों क़यामतों में 1000 साल की बादशाही का फर्क है। ये इसी बादशाही का जिक्र हो रहा है। अगर आप पहली बादशाही में शरीक हो जाते हैं तो आप 1000 साल बादशाही के बासी कहलाएंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। 1000 साल बादशाही में आप शरीक हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बर्रा की शादी की क़यामत में आप शरीक होंगे। चौथे नंबर पर आप यरूशलेम में, नए यरूशलेम में दाखिल होंगे। पांचवें नंबर पर पहली क़यामत में शरीक होने वाले आसमान पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। कई लोग सानू कहते जी भाई जी तुसी गिरजे च नचदे बड़ा जे, तुहानू की प्रॉब्लम है? तुसी बड़े हाथ चुके होंदे ने ते बड़े नचदे जे। मैं उन्होंने कहा इसलिए नचने क्योंकि सानू हजे उड़ना नहीं आता। सानू उड़ना नहीं आता, प्रैक्टिस करते हैं किते नचते नचते ही यीशु आ जाए तो असीं नचते नचते उड़ के उसदा इस्तेमाल करांगे। हालेलुया। हालेलुया। आपका और मेरा यीशु वादों का सच्चा खुदा है। वो जो कहता है वो करता है। पहली क़यामत और उठाए जाने में बड़ा रब्त है। पहली क़यामत और यीशु मसीह की दूसरी आमद में बड़ा रब्त है। उठाए जाने को अंग्रेजी में कहते हैं रैप्चर। यीशु मसीह के आने पर मैंने आपको पहले बता दिया है होगा क्या। यीशु आया और उसके आने की सबसे पहली निशानी ये होगी कि जो ईमानदार दफनाए गए कब्रों में होंगे वो कब्रें खुल जाएंगी और वही मुर्दे हवा में उड़कर यीशु का सबसे पहले इस्तकबाल करेंगे। एक हवाला मेरे साथ देखिएगा, तसल्लीकियों के नाम पहला खत, उसका 4वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत हम देखेंगे। 16वीं और 17वीं आयत जरा निकालिए और हम देखते हैं। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। कौन उतर आएगा जी? ये मेरे और आपके यीशु की बात हो रही है। खुद उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। ये मैं अपने पास से कोई बात नहीं आपको सुना रहा, ये इंजील के वादे हैं, ये कलाम की पेशन गोइयां है। ये उनके लिए जो यीशु मसीह की खातिर मुएंगे। जब वो आसमान पर से ललकार और मुकर्रम फरिश्तों के साथ आएगा तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम बोले हम जो बाकी हैं उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। हालेलुया, प्रेज
प्रेज द लॉर्ड। ये कैसी मुबारक खाली है, ये कैसी बरकत है। ईमानदार जमीन पर अपने खुदा से प्यार करने वाला है और वो हवा में उड़ जाएगा। मैं एक बात करके फिर मैं आपको इसकी तफसील में लेकर जाता हूं। इसके दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, जो दो ख्याल पाए जाते हैं। एक ख्याल ये है कि बड़े आलमों का, बड़े स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि कलीसिया जब मसीह यीशु आएगा तो कलीसिया इज़ार सानी से पहले उठा ली जाएगी और कलीसिया को दुख नहीं सहना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है, ये प्री रैप्चर है। लेकिन एक दूसरा इसी बारे में ख्याल है और उलमा का, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मसीह की आमद से पहले इज़ार सानी होगी, यानी इज़ार सानी में से कलीसिया गुजरेगी और फिर आसमान पर उठाई जाएगी। पहला ख्याल है कि बगैर मुसीबत सहे, इज़ार सानी सहे कलीसिया उठा ली जाएगी। दूसरा ख्याल है नहीं, मसीह की आमद से पहले कलीसिया को बहुत दुख उठाने पड़ेंगे और फिर कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। मैं अपनी नाकस असल अकल से और इन उलमा के साथ मुत्तफिक हूं जो कहते हैं पहले इज़ार सानी सहनी पड़ेगी, दुख सहना पड़ेगा, उसके नाम से बेइज्जत होना पड़ेगा, उसके नाम से जलालत उठानी पड़ेगी, उसके नाम से हमें तकलीफें सहनी पड़ेगी, हमारे नाम बिगाड़े जाएंगे, हमें स्कूलों से निकाला जाएगा, हमें कोड़े मारे जाएंगे, हमें यूं मारा जाएगा जैसे हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन इसलिए हमें मारा जाएगा क्योंकि हम मसीही हैं। याद रखिए ऐ ईमानदार भाइयों, ऐ ईमानदार बहनों, इस बात के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि मैं और आप अगर ईमान से भरे हैं, यीशु के मानने वाले हैं, कलाम को सुनने वाले हैं, तो कलाम मुझे और आपको कहता है, यीशु मसीह ने फरमाया अगर ये हरे दरख्त के साथ ये करते हैं तो सूखों के साथ क्यों नहीं करेंगे। अगर उन्होंने यीशु के साथ किया तो यीशु के मानने वाले भी तैयार हो जाए, उन्हें भी इज़ार सानी में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अजर इसका बहुत बड़ा है। यीशु ने सलीबी मौत सही तो वो आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है और जब वो लेने के लिए आएगा जो जमीन पर उसके नाम से दुख सहेंगे वह भी उड़कर अपने बाप के पास पहुंचेंगे और अदालत और तख्त को हासिल करेंगे। हालेलुया। आपका और मेरा खुदा बड़ा अजर देने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका खुदा आपको जमीन पर बर्दाश्त करने की कुव्वत देगा और आसमान पर इसका बड़ा अजर हमें मिलेगा। अब गौर कीजिए, क्योंकि बोलके मिस्र से जब इसराइली निकले तो कितनी आफतें आई थी? हाँ जी, पहलो कितनी आई? 10 आफतें आई, लेकिन खुदा ने उन आफतों से उन्हें बचा लिया और उन्हें निकाल लाया। इसी तरह कलीसिया को भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा, कलीसिया को भी दुख सहने पड़ेंगे, क्योंकि मैं और आप क्या है? यीशु के मानने वाले हैं। हमें जमीन पर इज़ार सानी सहनी पड़ेगी और हमें हवा में उड़ने के लिए जमीन पर उसके नाम की मुसीबतें उठाना पड़ेगी। आपका मेरा खुदा हमें तैयारी के लिए अलार्म कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। गेट रेडी, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को इस बात के लिए तैयार कीजिए, अपने आप को कमजोर मत कीजिए। आपको पता है दुनिया की बेहतरीन मां कौन सी कौम की मां है?
किसी को पता है? बाजियो यीशु की माँ। ओके, यीशु की माँ। आज के जमाने की बात करें, एक मोहताज, एक पूरी दुनिया में हर मजहब की माँ का तजजिया किया गया। तो आप जानते हैं सबसे बेहतरीन माँ जो बच्चे को रूहानी तौर पर तैयार करती है, वो कौन सी माँ है? यहूदी माँ, इस्राएली माँ। दूसरे नंबर पर कौन है? पता? इस्लामी माँ। वो भी सवेरे ठांदी है बच्चे तो कहती चल गो जाके सपारा पढ़। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है पता? हाँ जी, तीजे नंबर ते भी नहीं तुसी आन नहीं भैनों। तीजे नंबर ते भी कम्युनिस्ट मां। एक कम्युनिस्ट पता कौन ने? कहते ने कोई खुदा नहीं है, पुत जमदा धी जमदी है, उन्होंने कहते ने पुत्र आप ही कमाना है आप ही खाना, कोई खुदा खुदा नहीं होता। और वो इतना पक्का कर देते हैं ते साडा नंबर के चौथे पंजवें नंबर ते लगदा। वजह की है? तुसी आंदी है कोई गल नहीं, खैर बड़ा होके चला जाएगा। वो निक्के होंदे नहीं जानते बड़ा होके कितों जाएगा। मेहनत कीजिए, कुर्बानी दीजिए, अपनी नींद की कुर्बानी दीजिए, क्योंकि अगर हमें इज़हार रसानी के लिए कलीसिया तैयार करनी है तो फिर आज मुझे और आपको, ये सिर्फ बहनों का काम नहीं है, ये भाइयों का काम भी है। दोनों मियां बीवी को खुद बदलना है और फिर उन्हें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनकर उनको तब्दील करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम मसीह की खातिर कुर्बान होने वाले बन जाएं तो फिर आपको जमीन पर उसके कलाम की समझ होना नहायत जरूरी है, नहायत जरूरी है। मैं आपको जल्दी से इस कलाम के इख्तिताम पर लेकर जाना चाहता हूं। आइए जरा एक हवाला देखें मेरे साथ, मैंने स्किप कर दी है बहुत सारी चीजें। आइए जरा देखें मत्ती 24वां बाब और उसकी 38वीं आयत से, बल्कि 37वीं आयत से देखते हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आ जाएगा। तुम नहीं जानते तुम्हारा खुदावंद किस दिन आ जाएगा। दो आदमी खेत में होंगे, जो ईमानदार होगा वो हवा में उड़ जाएगा, ते जेड़ा ईमानदार नहीं होएगा वो हाली बांधा रहेगा। दो चक्की पींदियां क्यों पीनी नहीं, हुन की करांगे? चल इंज करने, दो गप्पा मारन नहीं होंगी, चक्की तो नहीं पींदियां, गप्पा तो मार दियां। तो जो ईमानदार होगी वो ले ली जाएगी, गैर ईमानदार छोड़ दी जाएगी। रू रियायत नहीं की जाएगी। ए मेरी भैन है, ए मेरा भाई है। अक्सर भाई कहते हैं ए जी ताड़ी बाजी ते बच्चे जाते थे है किसे, ये बाजियां चलियां जानियां ते भाइयां ने रह जाना। हमें सबको खानदानी तौर पर आसमान पर उस पहली क़यामत में शरीक होने के लिए जोर मारना है। मैं आपको आखिरी हवाले की तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूं। 37वीं आयत में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। मैं इस हवाले को जब पढ़ रहा था, मैंने कहा यार क्या था नूह के दिनों में, क्या बात हो गई नूह के दिनों में, जो कलाम ने ये कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। तो आइए जरा देख लेते,
पैदाइश छठे बाब में चलते हैं। पैदाइश छठा बाब और उसकी पहली आयत से देखते हैं। जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदा ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मजामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो अभी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाने के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए। 3 तब्दीलियां आज के जमाने के साथ जरा जोड़कर देख लीजिएगा, कहीं इब्ने आदम के आने का वक्त तो नहीं हो गया। और अगर आप मस्त हैं अपने कामों में तो कानों की खुजली को जरा दूर कर लीजिएगा। सबसे पहले नूह के जमाने में क्या पहला काम क्या हुआ? आदमी बहुत क्या हुआ जी? आदमी बहुत बढ़ गए। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े सर वाले यानी कि ज़हीन तरीन लोग हैं, साइंसदान क्या दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग, वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि दुनिया ते आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 7 अरब तो बहुत ही हो गई। नूह के जमाने में क्या हुआ जी? आदम बोलेंगे तो मुझे लग रहा है हाँ जी, आदमी को क्या हुआ? आदमी बहुत ज्यादा, तो आज भी आदमी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इंसान बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है खूबसूरती बढ़ गई, है ना? खूबसूरती बढ़ गई तो यस्सु दे फजल नाल खूबसूरती अज भी बहुत बढ़ गई। तानू माड़ा बंदा शायद ही कोई मेरे रंग का नजर आएगा। यस्सु का शुक्र करिए, चैना दी करीमा का ने रंगा बदल के रख दिता, नस्ल बदल दी, खूबसूरती बदल गई, बढ़ गई ना। उदो भी खूबसूरती बढ़ गई ते अज भी खूबसूरती बढ़ गई है। आपको मैला बंदा नहीं नजर, सब अच्छे खूबसूरत नजर आते। तीसरे नंबर पर क्या हुआ? उन्होंने देखा कि वो खूबसूरत है ते जेड़ी उन्होंने चंगी लगी ओदे नाल उन्होंने की कीता? ब्याह कर लिया। ते अज भी मार वगी हुई है, सोहनी होनी चाहिए ते सोहना होना चाहिए। बस ना कोई रंग, ना कोई अकल, ना कोई होर चीज, बस सोहना होना चाहिए। ते दूजी गल की सोहनी होनी चाहिए। शादियों का म्यार क्या हो गया? खूबसूरती और कुछ नहीं। ना रूहानी लेवल, ना कोई कलाम की गल, ना कोई गिरजे आने का पता, ना कोई किसी और किसी चीज की परख, कोई हुनर, बस एक कोई म्यार, सोना ते सोनी। उदो भी यही सी। मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूं। कलाम कहता है नूह के दिनों में जैसा हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। पहले नंबर पर आदमी बहुत बढ़ गए, आज भी आदमी बहुत बढ़ गए। उस वक्त खूबसूरती बहुत हो गई, आज भी खूबसूरती बहुत हो गई। उस वक्त भी शादियों का म्यार सिर्फ खूबसूरती था, आज भी शादियों का म्यार सिर्फ खूबसूरती है। और चौथे नंबर पर जो बात है, उस वक्त जब्बार लोग थे। जब्बार कौन होते हैं? जाबर, जुल्म करने वाले। और आज भी जुल्म करने वाले लोग हैं। आज भी हम छोटे से छोटे लेवल पर जुल्म करते हैं, दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं, दूसरे को दबा देते हैं, दूसरे को परेशान कर देते हैं। मेरे अजीज भाई, मेरे अजीज बहन, आपके लिए ये खुशी की खबर भी है और आपके लिए बुरी खबर भी है। उस वक्त भी लोग खाते पीते थे, शादियां ब्याह कर रहे थे और तूफान आ गया। और आज भी लोग खा पी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं और यीशु मसीह किसी वक्त भी आ जाएगा। क्या आज हम इस बात पर सोच सकते हैं कि मैं पहली क़यामत में शरीक होऊंगा?
ऐसा ना हो कि यीशु रात ਨੂੰ ਆਏ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ईमानदार सुत्ते ही जाग जाने ने ते उठ के ते वाच उठ जाना उन्होंने। लेकिन उन्होंने तो पहला कौन? जेड़े यीशु के नाम पे मरे ने, जिन्होंने यीशु के नाम पर अपनी जान दी है, जिन्होंने अपने गले कटवाए हैं, जिन्होंने अपने आप को डिवोट कर दिया, अपने आप को खुदा के कदमों में दे दिया, उन्होंने दोबारा जिंदा होना है। ये पहली क़यामत है। काश मैं और आप आज इस कलाम को सुनते सुनते नरसिंगे की आवाज सुने, यीशु आ जाए और अभी हम कलाम को कबूल करके हवा में उड़ जाए। ऐसा हो सकता है? यीशु कर सकता है, यीशु कर सकता है। लेकिन उड़न के ओ जेड़े कलाम सुन के उहदे ते अमल करनगे ओ मर भी जाणगे ते उन्हां दी कब्रां पहला खुलणगियां ते फिर ओ आसमान ते पहला जाणगे ते असीं बाद च जावांगे। अजीज भाई, अजीज बहन, जमीन पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर, अपने सारे काम कर, अपने बच्चों की शादियां कर, लेकिन दुआ कर कि तू पहली क़यामत में शरीक हो जाए। इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर कि तू पहली क़यामत में शरीक हो जाए। और वो कैसे होगा? जब तू अपना आप यीशु को दे देगा, जब तेरी जिंदगी यीशु के कलाम पर चलेगी, जब तू यीशु के कलाम को अपनी जिंदगी में ओढ़ना बिछोना बना लेगा, जब तेरी जिंदगी के अंदर उसके हुक्मों को मानना होगा। तुझे कोई यीशु के नाम पर अगर गाली दे देता है तो कबूल कर ले, अगर कोई तुझे बुरा लफ्ज बोल देता है तो कबूल कर ले, उसके खिलाफ जाकर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करके, क्योंकि तू यीशु की निगाह में मुबारक है, क्योंकि तू यीशु की निगाह में बाबरकत है। और यीशु ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आएगा जो यीशु से प्यार करने वाली होगी। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हों और अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें, बड़े ईमान बड़े भरोसे के साथ।